what is the meaning of the orchid? Orchid means the garden of the flower, right? It is called the orchard. In garden also you see the different types of the flower. In orchard, one and garden and the orchard is the meaning of the same. Okay, now today we have to see different types of the flowers. Okay, and what is the uses of the flowers. आपको पता है स्टूडेंट्स, फ्लावर्स जो है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एक तो पहले वो वर्शिप में यूज होते हैं, पूजा के लिए, राइट. दूसरा उसमें से बहुत सारी जो चीज़ है वो उसमें से बनती है. जैसे कि परफ्यूम आप यूज करते हो ना, परफ्यूम कहीं बाहर जाना होता है कैसे स्प्रे लगाते हो, वो भी फ्लावर में से बनता है. आपको पता नहीं होगा कि हमारे क्लोथ के ऊपर जो कलर्स होते हैं वो भी फ्लावर्स में से बनता है ना. अमेजिंग. ओके, सो नाउ इन चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट द फ्लावर्स. ओके, Ratan is studying in class 4th. Ratan is a girl and studying in the class 4th. She went to village with her grandfather during the holidays, and she went to the holidays. During the holiday she went to the grandfather. Okay, one morning grandfather took her to an orchard. One day grandfather took the Ratan to the orchard. When grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox at the time, Ratan ran and went inside the orchard. Now what happened when the grandfather gave the grass to the cow and buffalo? Ratan ran toward the orchard. She saw different flowers, sapling of the vegetables and climbers in the orchard. Ratan saw so many vegetables, small sapling. What is the meaning of the sapling? It is the small type of the plant, right? Okay. Now climbers. Now what is the meaning of the climbers? Everyone knows, which take the support and grow, right? She also saw plants of the grains and pulses and also tall trees. So many plants also see, plant of the grains and pulses and tall trees. Okay, whichever in the garden or orchard that see by the Ratan. Okay. How beautiful were the roses in the pot. Now Ratan saw the different roses. It is in pot. Do you know? They are red, yellow, pink and white. How many colors? Red, yellow, pink and white. However, in one of the pot there was a very little banyan tree like span. Rose has, you know children, rose has the 30 colors. आप बिलीव नहीं करोगे, रोज जो है वो 30 डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, राइट. ओके, नाउ पॉट के अंदर लिटिल बनियन ट्री था, उसका स्पान था लिटिल बनियन ट्री. शी वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड बाय सीइंग ऑल दिस. शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड. नाउ क्लोज योर आईज एंड इमेज दैट यू आर एट द सेम प्लेस like this. How do you feel? Which kind of the song would you like to sing there? Right? आप क्या करना है, आप आईज क्लोज करना है और आपको ऑर्चर्ड में घूमना है. आपको कैसा कैसा ऑर्चर्ड में दिख रहा है वो इमेज करना है और एक सॉन्ग गाना है ना. Have you ever seen so many flowers grow together and anywhere? Now here we have to write so many flowers of the colors of the different flowers and colors you have to mention here. Okay, now are there things in your house which have design of the flowers made of them, like clothes, seats, vase, etc. You have to find out in your house which type of the flowers design will be there in your clothes, seats and vase. आपके घर में कपड़े के ऊपर, वास के ऊपर, सीट्स के ऊपर डिफरेंट डिजाइन फ्लावर्स की बनी हो तो आपको उसको देखना है और फाइंड आउट करना है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द tapestry made by the people of the Kutch by using the embroidery. Now look at children, this is the tapestry and this tapestry is made by the Kutch people with the different type of the special type of the embroidery. Embroidery क्या होता है पता है? वो एक धागा लेते हैं और उससे वो क्लोथ्स के ऊपर बुन के करते हैं. It is called the embroidery. This design of the flower is done very
डिज़ाइन है, अभी मैंने दिखाई वो टेपेस्ट्री है और वो डिज़ाइन जो है वो फ्लावर्स की है और बहुत स्किलफुली करना पड़ता है। सच डिज़ाइन आर डन ऑन द कुशन कवर। वो डिज़ाइन कुशन कवर पे आपके घर में जो तकिया होता है ना उसके ऊपर भी ऐसी डिज़ाइन होती है। वॉलेट पर्स जो होता है उसके ऊपर भी होती है, पर्स के ऊपर, बैग्स सबके ऊपर ऐसी टेपेस्ट्री एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन होती है। वो कच्छ के पीपल करते हैं। ओके, रतन हैज सीन डिफरेंट फ्लावर्स, उसने डिफरेंट फ्लावर्स देखे। यू मे हैव सीन देम, आपने देखे भी होंगे। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द फ्लावर्स, मार्क राइट ऑन द फ्लावर्स व्हिच यू हैव रिकॉग्नाइज्ड। आपने कौन से फ्लावर्स देखे, यहाँ पे पिक्चर दिया है देखो, और उसमें से आपने कितने फ्लावर्स देखे हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। पहले तो यहाँ देखो ये कौन सा है, हिबिस्कस है, राइट। तो हिबिस्कस देखा है तो यहाँ उसका नाम लिखना है और यहाँ आपको टिक मार्क करना है। ओके, फिर यहाँ पे रोज है तो रोज आपने देखा है, नीचे लिखो रोज और टिक मार्क ऑन द रोज। ओके, देन सनफ्लावर, हियर यू हैव टू राइट सनफ्लावर एंड टिक इट आउट। Okay students, that activity do at home. It is the page number 80 of the textbook. Okay, now you have to recognize, now accept the picture given above, give another two name of the flower in the table. आपको इसके अलावा दूसरे दो नेम लिखने हैं कोई भी फ्लावर्स के। ओके, तो ये सब मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी। जैसे कि ग्रो ऑन ट्री, तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जो ट्री के ऊपर उगता है, तो आपने देखा है केसुरो जो होता है वो ट्री के ऊपर उगता है। तो ऐसे करके आपको ये टेबल फिल करना है। फिर ग्रो ऑन बसिस के ऊपर जो उगता है, तो जैसे कि रोज, मैरीगोल्ड, राइट। ग्रो ऑन क्लिम्बर प्लांट, जो क्लिम्बर के प्लांट पे उगता है, राइट। तो करेंट है, वो सब आपको लिखना है। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। ओके, नाउ लुक एट हियर, हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ द बोर्ड? This is called the billboard, right? So what is the meaning of the billboard? Billboard means that board is stick in the out of the garden. आपको गार्डन के बाहर या गार्डन के अंदर ऐसे टाइप के बोर्ड दिखाई देते हैं। उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखी है? Do not pluck flowers. That means that you don't pluck the flower in this orchard. आपको गार्डन में से फ्लावर्स प्लक करने नहीं है। Okay, now here is the some activity. Go to the garden, collect flower which have fallen down. Look at the flowers carefully and tell them. आपको क्या करना है? गार्डन में जाना है, नीचे जो गिरे हुए फ्लावर्स है उसको कलेक्ट करना है, उसको तोड़ना नहीं है। जो नीचे गिरे हैं वो ही लेना है। ओके, और उसको केयरफुली घर पे लाके उसको यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर? वो फ्लावर का कलर क्या है? विच काइंड ऑफ द फ्रेग्रेंस डज इट? उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है? व्हाट डज इट लुक लाइक? कैसे दिखता है? जैसे कि बेल के जैसा शेप है, बाउल के जैसा है, बस के जैसा है, कैसा शेप है वो लिखना है। ओके, डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन ब्रांचेस? वो कहाँ ब्रांचेस के ऊपर उगता है? हाउ मैनी पेटल्स डज इट? तो उसकी पेटल्स आपको गिननी है। पेटल्स क्या होता है पता है ना? देखो, जैसे कि ये फ्लावर है, राइट। तो यहाँ से फ्लावर्स जो है वो ऐसे होते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लावर्स है। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ओके, तो आपको जो फ्लावर्स आपने नीचे से लिया है उसकी पेटल्स कितनी है वो काउंट करके लिखना है। ओके, ऐसा करके आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। नाउ यू मस्ट हैव सीन बर्ड ऑन द प्लांट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बर्ड? बर्ड देखा है चिल्ड्रन? हाउ टू ग्रो द बर्ड्स? देखो, जैसे कि ये पूरा एक सप्लिंग है, राइट। यहाँ छोटा सा यहाँ पे लीव्स ग्रो होते हैं। ओके, जब पूरा सप्लिंग अच्छे से ग्रो हो जाता है उसके बाद यहाँ से एक बूट टाइप निकलता है, ऐसा करके कुछ निकलता है, राइट। ऐसा लिखा है आपने? हाँ, दिस इज कॉल्ड द, ऐसा निकलता है, राइट। फिर वो बड़ा होता है और धीरे धीरे जो आगे का मुंह होता है ना, ये वो फटने लगता है और फट जाता है। इसके बाद धीरे धीरे
के बाद वो बड़ा सा फ्लावर बन जाता है और ये जो पार्ट है जैसे ही फ्लावर ग्रो होता है वो पार्ट धीरे धीरे सूखने लगता है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द बड। दैट मीन्स यू नो एवरीवन इट इज द कली, राइट? कली हम बोलते हैं ना। ओके, you must have seen on the plant bird. Okay, observe this bird on the plant which grow near your surrounding. यहाँ देखो आपको एक फ्लावर्स दिया है और आपको ऑब्जर्व करना है कि ये आपके घर के पास होता है कि नहीं। ओके, now here also one table is given. Okay, you have to just all the lesson is about the activity and you have to fill this activity. Can you tell how many days will bird take to bloom in a flower? आपको पता है कि जो बर्ड है वो ब्लूम होने के लिए मतलब खिलने के लिए कितना टाइम लेता है? तो वो सब चीज़ आपके घर के आसपास सप्लिंग है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे कि आपके घर पे सप्लिंग है और एक बर्ड उगा है तो वो ब्लूम होने के लिए कितना टाइम लगता है। मोस्टली सारे बर्ड्स जो है 1 वीक का टाइम लेते हैं। ओके, लेकिन वो डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 1 वीक तो उनको लगता है। कोई 4-5 दिन में भी ब्लूम हो जाता है। ओके, नाउ चूज बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन द प्लांट एंड लुक इट एवरी डे। नाउ उसको हर रोज देखना है। राइट द नेम ऑफ द प्लांट, और वो कौन सा प्लांट है जो आपने ऑब्जर्व किया है तो वो आपको लिखना है। When did you see first this bull? आपने वो बुल को कब देखा है? ओके, डेट was, उस दिन का डेट डालना है। When the bird has the blooming in the flower that day, जब वो ब्लूम हो जाता है बर्ड तो उस दिन का डेट लिखना है। How many days did the bird take to become a flower? और फ्लावर बनने के लिए बर्ड ने कितना टाइम लिया? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 1 वीक लेते हैं, राइट? ओके, आस्क योर फ्रेंड द नेम ऑफ द फ्लावर दैट दे हैव सीन। अब आप फ्रेंड को पूछो कि उन्होंने कौन से फ्लावर देखे हैं। हाउ मेनी डेज डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू ब्लूम इन द फ्लावर, और उसको पूछो कि उसका फ्लावर ब्लूम होने के लिए कितना टाइम लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी एक्टिविटी है। ओके, यहाँ पे एक आपको फिर से टेबल दिया है, यूज ऑफ द फ्लावर, फ्लावर्स का यूज क्या होता है, उसका एग्जाम्पल और किस में से बनता है, राइट? यहाँ पे दिया है एज ए फूड, तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसका हम फूड की तरीके से यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया है गुलकंद। आपने खाया है गुलकंद? ओके स्टूडेंट्स, गुलकंद जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। You tell your parents to bring gulkand and you have to taste of the gulkand. Sometimes ice cream also that flavor of the gulkand is also made, right? तो गुलकंद का आइसक्रीम भी मिलता है ना? तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। गुलकंद इज मेड फ्रॉम द रोज। किसमें से बनता है? रोज में से। रोज की पेटल्स जो होती है ना उसमें से मैश करके गुलकंद बनाते हैं। वो हमारी बॉडी को इन समर सीजन स्पेशली वी हैव टू यूज द गुलकंद। व्हाई? बिकॉज इन समर सीजन एटमोस्फियर इज वेरी हॉट, राइट? सो गुलकंद प्रोवाइड अस कूलनेस टू द बॉडी, है ना? गुलकंद खाने से हमारी बॉडी में कूलनेस आती है। तो मोस्टली समर सीजन में ज़्यादा गुलकंद खाया जाता है, और ऐसा नहीं समर सीजन में बहुत सारे बेनिफिट है गुलकंद खाने के। ओके, एज ए मेडिसिन, ऐसा कौन सा फ्लावर है जैसे जो एज ए मेडिसिन यूज होता है? रोज वाटर। अब देखो रोज का वाटर आप घर पे भी रोज का वाटर बना सकते हो, है ना? रोज की जो पेटल्स है उसको लेके अच्छे से सन की धूप में रखो, नीचे एक वेसल्स रखो, ऊपर जो जैसे स्टैंडर जैसा हो उसके ऊपर पेटल्स रखो, नीचे बाउल रखो और सन की धूप में रखो। धीरे धीरे उसमें से वाटर निकले, उसका एक प्रोसेस होता है। तो रोज वाटर जो होता है वो रोज वाटर वैसे हर बार हम मोबाइल टीवी देख के हमारी आईज जो है वो दर्द करने लग जाती है, राइट? तो आपको कॉटन लेके वो रोज वाटर में डीप करके यहाँ पे वो कॉटन रखना है, तो वो बिल्कुल हमारी जो सारी थकावट है, जो हमारा आंखों का दर्द है वो सब चला जाता है। और इन द ब्यूटी रेमेडी ऑल्सो रोज वाटर इज यूज्ड, राइट? तो ऐसे वो मेडिसिन के एज ए मेडिसिन स्किन के प्रॉब्लम भी बहुत सारे उसके क्योर होते हैं। ओके, टू मेक कलर्स,
कलर्स बनाने के लिए कौन सा फ्लावर यूज होता है? तो ब्यूटा मोनोस्ट्रीमा, इट इज द केसुडो। केसुडो अभी मैंने बताया, केसुडो देखा है। हमारे पावागढ़ की तरफ हम जाएंगे तो केसुडा के इतने सारे फ्लावर्स जो है ब्लूम होते हैं इन द मंथ ऑफ द फागुन, राइट। फागुन महीना जब आना शुरू हो जाता है ना तो केसुडा बहुत ही ब्लूम होता है। और आप जब होली ये सब खेलते हो, केमिकल्स वाले कलर खेलते हो, है ना, केमिकल्स किसी के आँख में चले जाता है तो आँख में इन्फ्लेक्शन हो जाता है, राइट। फिर स्किन पे भी पूरा काला काला हो जाता है और जब होली खेलने के बाद बहुत दर्द होता है, राइट। तो ऐसे ऐसे कलर से होली खेलने से बेटर है कि केसुडा लेके आओ, राइट। केसुडा के फ्लावर्स लेके आओ, उसको पानी में डालो, उसको उबालो, बॉईल करो, देखो बिल्कुल इतना अच्छा ऑरेंज कलर का फ्लेवर, ऑरेंज कलर उससे आ जाएगा और उससे होली खेलो। और उससे होली खेलते हो तो कपड़े पर से दाग भी नहीं जाते, राइट। तो केसुडा में से कलर्स बनता है। एंड पलास भी है। इन सॉन्ग्स फ्लावर्स एवरीवेयर, इन द गार्डन, इन द हेयर। ओके, ये फ्लावर्स के ऊपर गाना लिखा है। आपको अगर फ्लावर्स के ऊपर गाना आता है तो आप लिख सकते हो। जैसे मुझे हिंदी सॉन्ग आता है, मैं बता रही हूँ, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली 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 कली, है ना। भंवरे क्या करते हैं? बेटल्स फ्लावर के ऊपर गुनगुनाते हैं, राइट। तो आपको भी ऐसा कुछ गाना आता हो फ्लावर्स के ऊपर तो आप लिख सकते हो। ओके, फिर दूसरा भी है, कोई फूलड़ा लावे छे फुआने वधावे छे, तो दैट इज द फ्लावर। आप कोई भी गाना फ्लावर्स के ऊपर लिख सकते हो। ओके, फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारे फ्लावर यूज होते हैं, जैसे कि रोज है, राइट। उसके बाद मैरीगोल्ड है, बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। और आजकल तो वेडिंग जब होती है तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स से ही पूरा डेकोरेशन किया जाता है। ओके, पूजा के लिए, वर्शिप के लिए भी फ्लावर्स की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो पूजा में यूज होते हैं। एंड फॉर द परफ्यूम, आई ऑलरेडी टॉट यू, परफ्यूम मेड फ्रॉम द जैस्मिन एंड द रोज। ओके स्टूडेंट्स, have you understand now what is the what is the uses of the flower? Nowadays at many places flower are grown in the field. In field also it is grown the flower. Flowers are grown at so many places. So many places we have to grow the flower. Now we have to flower spread up to the miles. So many miles.